is section 34 of IPC. आज भी ये सेक्शन है कॉमन इंटेंशन बट विथ अ डिफरेंट सेक्शन नंबर. Common intention be proved but not overact can be need to be proved. Common intention and overact both be proved. Common intention need to be proved but overact be proved. All of the above. मतलब क्या? ये एक पर्टिकुलर सेक्शन का आपको एक क्वेश्चन है. अब इस यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है इस सेक्शन का कंसेप्ट. क्या कंसेप्ट? दिस इज a conceptual question. If you don't know the concept of 34, you cannot do this concept. So meaning thereby कि you need to understand the conceptual clarity. You must have the conceptual clarity of a particular provision. Because ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधे कंसेप्ट के ऊपर है. Though it's an important topic, ऐसा नहीं है कि बहुत less important topic. It's an important topic. It's a common intention वाला topic, group liability वाला topic. ठीक है. फिर देखते हैं. Under section 45 of IPC, life denotes life of a human being, life of an animal, life of a human being and of an animal both, life of either human being or animal. Now see, बड़ा सिंपल सा सेक्शन था ये. बहुत सिंपल सा था. लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. ये पढ़ने के समय टफ नहीं लगता था, लेकिन when it comes to MCQ, you might be confused here कि whether it talks about human being or animal both or only human being. Are you getting my point or not? So how to take care of this kind of thing? Like, please come to section 2, subsection 17. BNS. Section 2, subsection 17 of BNS. Now it says कि life means the life of a human being unless the contrary appears from the context. Meaning thereby, आपको underline क्या करना है? Life of a human being. Human being. Just the human being. Now, if you mark it, underline it, then next time जब तुम डायरेक्ट पढ़ोगे ना दोस्त, तो तुम्हारे आंखों में वहां वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग आएगा फर्स्ट. होता ही नहीं होता. एंड यू ऑल आर लॉ ग्रेजुएट्स, तो आपने अपने कभी ना कभी अपने लाइफ में किया होगा, मार्क किया होगा, हाईलाइट किया होगा. करते हो नहीं करते? ऑनलाइन करते हो ना दोस्त. तो क्या अंडरलाइन करना चाहिए आपको? कीवर्ड्स अंडरलाइन करना चाहिए. क्या कीवर्ड्स? MCQ कीवर्ड्स का गेम है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? ह्यूमन बीइंग. अल्टीमेटली लाइफ इज लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ना. MCQ में एनिमल दे दिया, कंफ्यूज हो गया आदमी. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो MCQ ऐसा भी पूछता है. क्यों पूछता है? इससे आपको कोई बड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये वाला बात जानना चाहिए. नो, नॉट फॉर दैट. बट it is to know कि whether you went through the barrack or not. Maximum teachers I found in today's life in Northeast कि बहुत टीचर, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं? बुक से पढ़ते हैं. है ना? DNS का बुक ले लिया, IPC का बड़ा बड़ा राइटर का बुक ले लिया, सरकार ले लिया. नहीं पढ़. आपको कमांड होना चाहिए डायरेक्ट. इफ यू वांट टू सक्सीड डायरेक्ट. तो ये क्वेश्चन इस तरह है इसलिए कि अपने डायरेक्ट पढ़ाने. तो जब भी हम पढ़ाएंगे आपको अंडरलाइन करना है. इसीलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट लाओ. एक बार तुमने अगर अंडरलाइन नहीं किया दोस्त, तो वो अंडरलाइन नहीं होगा. आगे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मुझे पैसा समझा? तो डायरेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ना कि कैसा क्वेश्चन पूछा. देखो, हो सकता है तुम्हें आता है, लेकिन अगर तुमने उस सेक्शन को ध्यान ही नहीं दिया तब तुम कंफ्यूज हो जाएगा. यस और नो? नेक्स्ट, section 83 of IPC lays down a presumption of fact, an inclusive or rebuttable presumption of law, conclusive or irrebuttable presumption of law, irrebuttable presumption of law. Now what was 83 and अभी वो क्या है? It is act of a child above 7 years and under 12 years. अभी जो section 21 है भारतीय न्याय संहिता. Take out section 21. Now see, nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age
who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. Section 21 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Now listen to me, my friends. Here the question is कि whether section 83 is a presumption of fact, lays down presumption of fact, or inconclusive or rebuttable presumption of law, or conclusive or irrebuttable presumption of law, or irrebuttable presumption of law. Now ये सेक्शन पढ़ने से, जस्ट इसका वर्ड्स पढ़ने से ये आंसर निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सेक्शन के अंदर का कोई बात दिया है, नहीं दिया है ना। वेदर नो, यू कांट, जस्ट बाय रीडिंग दिस सेक्शन यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके लिए क्या है, लेकिन आंसर आपके सेक्शन में ही है, सेक्शन 21 में ही इसका आंसर है। जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। Who is saying B? Why Anurag? Why you? Why? तो वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। नाउ सी, अभी इन्होंने जो दो आंसर दिया इतनी बड़ी क्लास में, 40 लोगों की क्लास में 2 बच्चे या 3 बच्चों ने बोला, ये एक्चुअली होता है, यही होता है। क्यों? हमें बैरेट पढ़ना नहीं आता। तो सेकंड बात क्या हुआ, एक तो बैरेट को पढ़ना जरूरी है, और सेकंड टू नो कि हाउ टू रीड बैरेट, हाउ टू रीड बैरेट। जस्ट मैं इसका आंसर बैरेट पढ़ के मैं आपको बताता हूं। कम टू सेक्शन 21st, कम टू सेक्शन 21st, 20 of BNS. Am I audible online? Are you all with me? Okay. Come to section 21st. Act of a child under 7 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. Nothing is an offense. The line says कि nothing is an offense done by a child under 7 years of age. तो here the law presumed कि अगर एक चाइल्ड है, 7 साल के नीचे का चाइल्ड है, तो वो कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता। लॉ सेज मतलब आपके एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन में दिया गया है, ये सुनो, डायरेक्ट बोला गया है कि भाई अगर कोई भी बच्चा 7 इयर्स के नीचे का बच्चा है, अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है तो उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। उसका जूरिस्प्रूडेंस क्या है, डॉली इन कैपेक्स, लॉ प्रिज्यूम कि कभी भी 7 इयर्स के नीचे का बच्चे के पास मेंस या फॉर्म करने का वो अंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं। करेक्ट, इट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड यू कांट रिबट इट। लॉ ने डायरेक्टली बोल दिया। बट व्हेन यू रीड सेक्शन 21, nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age. Again it says कि nothing is an offense done by a child above 7 but under 12 years of age. लेकिन इसके साथ एक क्वालिफाइंग लाइन भी है, क्या है? Who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. Meaning thereby, who has not attained sufficient maturity. If it is so, then it is not an offense. But one can prove or not कि ये sufficient maturity. बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर किसी ने ये प्रूफ कर दिया कि उसके पास sufficient maturity है to understand, then what? The presumption which is made by law, it can be rebut or not. Rebut in the sense, आप उसको discard कर सकते हो नहीं कर सकते। लॉ ने बोला कि nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age but under 12 years of age who has not attained sufficient maturity to understand the nature and consequences of the act of his act. तो मीनिंग thereby यहां से क्या है, प्रिजम्पशन तो है लॉ का, लेकिन साथ में उसने क्या किया है, आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया है उस प्रिजम्पशन को ब्रेक करने के लिए। अगर इफ द प्रोसिक्यूशन कैन प्रूव कि ही इज अ चाइल्ड of 8 years 9 years but he knows what amounts to theft, 10 साल का बच्चा अगर सामान लेके अगर आ गया, उसके ऊपर अगर थेफ्ट का केस लगा है, तो ये बोलेगा ना मैं तो बच्चा हूं, आई डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग।
बट इफ द प्रोसिक्यूशन कैन प्रूव कि ही नो व्हाट ही इज डूइंग, क्योंकि उसने चोरी करते उसने पॉकेट में डाला, वो जाके उसने मिट्टी में छुपा दिया, तो बोला ये समझ रहा है कि इट अमाउंट्स टू चोरी, नहीं तो उसको कैसे पता चलता है कि चोरी करना क्या है क्या नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो फ्रॉम द फैक्ट्स इट कैन बी रिबर्ट। सो व्हेनेवर यू रीड अ क्रिमिनल लॉ, any criminal law, you must have command in one more subject, that is Bharatiya Sakshya Adhiniyam. That was Indian Evidence Act. बात समझा नहीं समझा? You must know what is the rule of presumption. What amounts to? You must know कि what is rule of presumption. You must know what is presumption of law. You must know presumption of fact. You must know what is conclusive proof. You must know what amounts to proof, what amounts to disproof, and what amounts to not proof. Are you getting my point or not? समझ में आ रहा नहीं? IPC हो या BNS हो या CRPC हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, आपको साक्ष्य अधिनियम के बारे में आइडिया होना मैंडेटरी है। मेरी बात समझ में आया? अगर आपको साक्ष्य अधिनियम नहीं आता, यू कैन नॉट अप्लाई लॉ। Are you getting my point? So whenever we read IPC, BNS will make you understand the rules regarding साक्ष्य अधिनियम। तो ये जब हम सेक्शन 2021 पढ़ेंगे तो आपको हम प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको इंटरप्रेट करना सीखोगे कि बैरेट को कैसे पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं? जहाँ आप पहले जो लाइन है वो कंक्लूसिव है, इरिबटेबल है, कंक्लूसिव प्रूफ है, इरिबटेबल है। अगर ये प्रूफ हुआ कि बच्चा 7 साल के नीचे का है, इसे कंक्लूसिव एंड इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ। बट इन 21 there is a qualifying words about the sufficient maturity and all. It's about facts or not? Yes or no? Can be repeated. ठीक है? Next, और किस तरह का क्वेश्चन पूछता है? Right to private defense is available under all circumstances, available when there is a time to recourse, when there is no time to have recourse, and all of the above. Now see, now private defense, जस्ट प्राइवेट डिफेंस, अब अगर आपने सेक्शन पढ़ लिया तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल प्राइवेट डिफेंस क्यों होता है? व्हाई देयर इज ए प्राइवेट डिफेंस? व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस? यू नो, टू डिफेंड योर बॉडी प्रॉपर्टी एंड टू डिफेंड द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर। जगह से नाउ द थिंग इज दैट कि व्हाई प्राइवेट डिफेंस, हम ये भी पढ़ाएंगे। Why private defense? Because it is not possible for the state to be available every time. Yes or no? Whether it is possible for the state to be available every time? No. The law gives you some rights to protect your body property and body and property of others. Are you getting my point or not? But when you have a time to take recourse, तुमको बोला गया कि तुम्हारा बच्चा को हम कल उठा लेगा और फेंक देगा। मैंने फोन किया, बोला तामुत मैं तुम्हारे भाई को कल उठा के फेंक दूंगा, ठीक है, मुझे 1 करोड़ रुपया दो। फोन करके बोला तामुत मेरे घर आके मुझे गोली मार दिया, बोला कि प्राइवेट डिफेंस। भाई तुम्हारे पास टाइम था ना, तुम पुलिस के पास जाते, पुलिस को बोलते। ये सुनो, बात समझ में आ रहा है नहीं यार? समझ में आ रहा है नहीं यार? समझ में आ रहा है? जब तुम्हारे पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटी का रिकॉर्ड्स लेने के लिए, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड, बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये तभी आपको यूज करना है जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और आपको अपना लाइफ प्रॉपर्टी सेव करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इसका आंसर क्या होगा? सी, बिना प्राइवेट डिफेंस पढ़ा है, जस्ट उसका जूरिस्प्रूडेंस समझे, तुमने इसका आंसर किया नहीं। सो पढ़ना कहां से है? डायरेक्ट। डोंट जस्ट, क्या बोलता है उसको, ये जो नोट्स वाला जो रेलगाड़ी है ना, इस रेलगाड़ी के पीछे अपना डब्बा लगा के मत जाना, फायदा नहीं है। क्रैक करना है कोई भी लॉ रिलेटेड एग्जाम डायरेक्ट, क्योंकि आप जब जजमेंट दोगे, ऑर्डर लिखोगे, आप ये सरकार साहब का बुक लेके नहीं आओगे उस समय ज्यादा,
आपको क्या लाना है? पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपको वो जो भी आपकी लॉ की किताब है वो काम नहीं आएगी ना, ये कोचिंग का नोट्स काम आएगा आपको। आप ये कोचिंग के नोट्स से कोट नहीं कर सकता कि एक्सपीरियंस ने अपने नोट्स में लिखा था ये बांगिया सर ने। नो, द लेजिस्लेटिव इंटेंट, व्हाट? द लेजिस्लेटिव इंटेंट, लेजिस्लेचर ने जो बनाया है वही आपका काम है इंटरप्रेट करना। यस और नो? यस और नो? मुझे पता। तो आपको पढ़ना कहाँ से चाहिए? प्लीज अब इसको देख के ही ऑर्डर लिखो, आपको ये 21 ही देख के आपको इंटरप्रेट करना है। तो यही इंपॉर्टेंस है आज के एग्जाम में। मैं अभी आपको एक बात बता देता हूँ दोस्त, ये जो मेंस है, बहुत बच्चा होगा जिसने मेंस का क्वेश्चन पेपर देखा होगा। आईपीसी का मेंस का क्वेश्चन पेपर है आपके पास? डू यू हैव राइट नाउ? प्रीवियस ईयर? नो ना? लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कहाँ है मटेरियल किसी के पास? कि उसके पीछे ही होगा? गिव मी अ मटेरियल प्लीज। नाउ सी, जस्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है मेंस में। सुनना, जिसने देखा होगा प्रीवियस से उसको पता होगा, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया मणिपुर में, व्हाट इज मेंस्ट्रुआ? एक्सप्लेन एक्टस नॉट फेसिड रियम निसी मेंस सिट्रिया, हाउ फार ए मोटिव इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग अ क्राइम। सो नो थिंग इज दैट, ये आपने एलएलबी में लिखा है? लिखा ही नहीं लिखा? व्हाट इज मेंस्ट्रुआ? एक्टस फेसिड नॉन सिट मेंस, लिखा ही नहीं लिखा है? से समथिंग ऑनलाइन। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ अ क्राइम? मेंस्ट्रुआ, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। पता है, लिखा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ऐसा लगता है? नहीं लगता है? It seems like. Now let me go. Let me move. Now, again, in general exception, जो general exception का चैप्टर है उसमें क्या पूछा गया? Let me go chapter wise, okay? तब आपको थोड़ा सा easy होगा। General exception. अब जनरल एक्सेप्शन में प्रीलिम्स ने पूछा है कि व्हाट इज द एज ऑफ अ चाइल्ड इफ ही इज टू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी बिलो 7 years। ये इजी क्वेश्चन है, साथ में सेक्शन नंबर और साथ में एक कंसेप्चुअल। तो मीनिंग देयर भाई, ये जो 7 years 7 years या 12 years वाला जो बच्चे वाला क्वेश्चन है, चाइल्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको सेक्शन नंबर पूछ सकता है, जस्ट द एज पूछ सकता है, बहुत इजी पेपर आया तो। साथ में आपको क्या पूछ सकता है? कंसेप्ट। आपको पूछ सकता है कि कौन सी जजमेंट से इस पर्टिकुलर टॉपिक का प्रोपोजिशन निकल के आ रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नाउ कमिंग टू द मेंस। मेंस में क्या है? मेंस में क्या पूछा है? जस्ट व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द मेंस इज लिमिटेशन ऑन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। व्हाट आर द लिमिटेशन इन एक्सरसाइजिंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस? डिस्कस 3 marks। इट सीम्स लाइक इजी क्वेश्चन और नॉट? It seems like it's easy question. You cannot exercise more harm than necessary. When you have time to take recourse, you cannot. It seems to be easy. आप भी लिखोगे, सब लिखते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। 3 में मिलेगा 1, 3 में मिलेगा मैक्सिमम 1.5, मैक्सिमम 1.5 if you go through this way, because this is the way which you have already taken in your college life, LLB life, but here you are going to be a judicial servant. So what they want, क्या चाहते हैं फिर? तुमने दिया है थ्योरी क्वेश्चन, आप मुझे थ्योरी क्वेश्चन दे रहे हो, एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, आपने थ्योरी पूछा है मुझे। आप पूछ रहे हो व्हाट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, वेदर अ पर्सन इज अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड अ प्रॉपर्टी, इफ सो एक्सप्लेन। यू आर जस्ट आस्किंग मी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, यस और नो? बट माय डियर फ्रेंड्स, उसी बच्चे को अच्छा मार्क्स मिलता है जो इंटरप्रेट करता है। क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। ये याद करके लिख के आ जाओगे, आपको एवरेज मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मान लो तुम्हारा मेंस में तुम्हारा धक्का लग गया बिकॉज जीएस में अच्छा किया आपने, इंग्लिश में अच्छा किया आपने, तो मान लो कि आपका मार्क्स ज्यादा आ गया और लॉ में 50-50 आया, पास हो गया, इंटरव्यू जाओगे फेल हो जाओगे।
इंटरव्यू जाओगे फेल हो जाओगे। पूछो क्यों? इंटरव्यू में आपको लॉ जब पूछा जाएगा तो जो पैनलिस्ट है वो ये चाहेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे वेदर यू कैन इंटरप्रेट लॉ और नॉट, whether you can interpret the law or not. Say, I know section 36 about this, sir, I know section 26 about this. Sir, no, my dear friends, अगर आपको इंटरव्यू में सेक्शन पूछता ही नहीं है, बकवास बात है ये, और अगर आपको सेक्शन पूछा और आप भूल भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्लरिकल काम है। पेस्कर को बोला है, पेस्कर बैग निकालो, हाँ बताओ कौन सा सेक्शन में ये है, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन वो सेक्शन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस सेक्शन का जो अंदर चीज है उसको आप इंटरप्रेट करना आता है नहीं आता है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बी जुडिशियल सर्वेंट फर्स्ट क्लास, सिविल जज, जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाज जेएमएफसी और सिविल जज, यस और नो? सो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेशन माय डियर? मान लो हम मालिक हैं, तुम मालिक हो, एम्प्लॉयर हो, यू आर ए एम्प्लॉयर, जस्ट टेक द हाई कोर्ट एज एन एम्प्लॉयर and you all are going to be the employee of the high court as a judicial servant. So what should be their expectation, my dear? As an employee तुम्हारा expectation क्या होगा कि इंसान जब जज बन के जाएगा, इसको जजमेंट पास करने के लिए इसको इंटरप्रिटेशन तो आता हो, समझ में तो आता है कि क्या लॉ है क्या फैक्ट्स है, yes or no? समझ में आ रहा है? बिकॉज ये जो आपको सुनाई दे रहा है ना कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना जरूरी है, 3 years ऑफ प्रैक्टिस, ये जो ह्यू एंड क्राई चल रहा है, भले ही 3 years का प्रैक्टिस मैंडेटरी ना हो, even if it is not mandatory, my dear friends, but the expectation of the High Court will be is totally different now. Will be नहीं, अब totally different हो गया है। पहले आपने सुना होगा 10 साल पहले, 8 years पहले एकदम बोले वो एकदम थ्योरी लिख के आया था, जैसे एकदम कॉलेज में लिखते वैसे पेज भर भर के आया था, जज बन गया, बट अब नहीं बनेगा। कभी भी आपने असम जुडिशियल सर्विस में, नागालैंड जुडिशियल सर्विस में आपने कट ऑफ ही नहीं सुना था, जिसको 60 मिला उसका प्रीलिम्स हो जाता था, बट दिस टाइम नागालैंड 66 कट ऑफ, 65 कट ऑफ, असम since 2 years 72 73 कट ऑफ। Why? Even if you are getting 60% marks in your mains, you are not clearing your final exam. Why? Because of this change of attitude. 100 मार्क्स का पेपर करके आओगे तब भी तुम्हें 50 नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे सर मैंने सारा लिखा था तब भी मुझे इतना खराब मार्क्स मिला। इट इज नॉट योर LLB माय डियर, इट इज नॉट योर कॉलेज एग्जाम। आप लोग पूछते हो ना कि सर 5 मार्क्स के कितना पेज लिखे, 3 पेज, 2 पेज, 5 पेज, ये सुनो, ये कॉमन क्वेश्चन हर बच्चा पूछता है, आपके दिमाग में भी ये इशू होगा, सर 5 मार्क्स के कितना लिखे ना। अभी क्वेश्चन क्या पूछा कि what is right to private defense, whether a person is a right to private defense of the body and property, if so explain. Now he is simply asking you what is right to private defense. तुमने 10 पेज का अगर थ्योरी लिखा कोई मतलब नहीं, you might not get half marks. What is private defense? You have to go through the jurisprudential aspect because it is not defined na what is private defense per se. And if you go through point wise, against what? Against any offenses, you can exercise right to private defense against offenses only. Are you getting my point or not? It is a limited right. अगर तुम इस बात को पॉइंट वाइज भी लिखोगे और एक पेज में भी लिखोगे, you will get 3, at least 2 out of 3, 4, 3.5, 3.75 out of 5. Are you getting my point? Since 3-4 years, it's my experience since 4 years कि लोग 4 बार मेंस पास नहीं करता है, 5 बार मेंस पास नहीं करता है। उसका रीजन कुछ और नहीं है, उसका रीजन ये है। और दूसरा बड़ा रीजन है कि आप लोग लॉ स्टूडेंट होना, आप लोग में एक सबसे बड़ा बीमारी क्या है, आप लोग भूल जाते हो कि इस एग्जाम में आपके लिए इंग्लिश भी उतना इंपॉर्टेंट है और GS भी उतना इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका लॉ क्लास है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका GS का क्लास है और इंग्लिश का क्लास है। रीजन क्या? असमिस का क्लास है, इफ लैंग्वेज इज एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज लॉ इज ऑफ 200 मार्क्स इन मेंस, यस और नो? GS in English is also of 200 marks, 100 marks each. Even if you get 70 in law, 140 marks, और तुम्हारा इंग्लिश का 40 मिल गया, 45 मिल गया, खत्म। समझ में आ रहा है नहीं? समझ में आ रहा है?
आप लॉ में ज्यादा से ज्यादा 70 स्कोर करेगा, कितना? 70 इज द मैक्सिमम मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट इन असम जुडिशियल सर्विस। इन अरुणाचल क्वेश्चन 2 मार्क्स 1 मार्क्स का भी होता है, तो आपको ज्यादा मिलने का चांस रहता है, ठीक है। बट इन जीएस एंड इंग्लिश माय डियर, वन कैन स्कोर अप टू 90 ऑल्सो। कितना? 90। यस, आवर फर्स्ट बैच शी गॉट 90 मार्क्स इन जीएस, सेकेंड बैच वेरी गुड मार्क्स इन जीएस इन इंग्लिश। अब गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। लॉ कैसे पढ़ना है उसका तरीका हम सिखाएगा आपको क्लास में। यहाँ पे कोचिंग में सिर्फ आप ये सीखने के लिए नहीं आया कि व्हाट इज तो आपका यूट्यूब बता देगा, कोई भी इंसान आपको बता देगा व्हाट इज थेफ्ट, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, लेकिन आप यहाँ पे हो not only to just know the factual aspect but also to know the jurisprudential aspect and also to know how to apply that particular thing in your day-to-day life. Are you getting my point? समझ में आ रहा है नहीं? मैं आपको यहाँ पे याद कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है, ये याद कर लो, ये नहीं, ये आपका काम है। आपको इसके लिए बिठाया हूँ यहाँ पे to know how to read law. This law barrack is not a novel. It's not a novel कि पढ़ते क्या समझते क्या पढ़ते, no, it's not like that my dear. इस बैरेट को, आईपीसी के बैरेट को, इसको तो नहीं, आईपीसी के बैरेट को मेरे जैसा लड़का जो बहुत नया है उसने अभी तक कम से कम 40-50 टाइम्स पढ़ लिया है। और जो लोग हैं जो आज सीनियर जज भी है, सीनियर एडवोकेट्स भी है, इनफैक्ट आज भी अगर कोई केस आता है तो उन लोग बैरेट खोल के देखते हैं। It's the beauty of barrack. So you should know how to use this barrack. Chakma, you know how to use sword? No? You know how to use AK-47? मैंने तुम्हारे पास AK-47 है, 10 लड़का आ गया तुमको असॉल्ट करने के लिए, तुम क्या करेगा? मार देगा, डरा ही सकता है, लेकिन यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ना, नहीं था तुम्हारे पास? AK-47 था, लोग मारने आ रहा था, इंपॉर्टेंट चीज था प्राइवेट डिफेंस के लिए, तुम यूज कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? यू डोंट नो द यूज। सेम विथ यू माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं पूछना है, आपके पास बैरक है, तो इसको पढ़ने का तरीका सीखो। यहाँ पे आप लॉ पढ़ नहीं रहे हो, लॉ पढ़ने का तरीका सीख रहे हो। समझ आ रहा है? कितना सेक्शन है इसमें? 358। No one will teach you 358 sections. No one will teach you NDPS when you are going to execute NDPS. No one will teach you POCSO when you are going to execute POCSO when you become a judge. तब कैसे करोगे? बात समझो मेरी बात। सेल ऑफ गुड्स तो हम नहीं पढ़ा रहे, आपका सिलेबस में नहीं है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपके सिलेबस में? नहीं है। और नहीं, मेक सम नॉइज। नहीं है क्या? आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस नहीं मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए? पहला वही केस मिलेगा चेक बाउंसेस का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं मिलेगा आपको। तो आप ये बोलोगे हमको तो पढ़ाया नहीं था ये। तो इट्स एन आर्ट टू इंटरप्रेट डायरेक्ट, इट्स एन आर्ट। अगर ये आर्ट अगर आपने सीख लिया, आप कोई भी डायरेक्ट इंटरप्रेट कर दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि अब जुडिशियल सर्वेंट से जो एक्सपेक्टेशन है, जो एस्पिरेंट से जो एक्सपेक्टेशन है एज ए जुडिशियल सर्वेंट एस्पिरेंट, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन अब जस्ट मगअप का नॉलेज नहीं है, इसीलिए कंपटीशन टफ होते जा रहा है। हर बच्चा मगअप कर रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख रहा है, हो गए, नो, खत्म ये जमाना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? धीरे धीरे जुडिशरी का जो स्टैंडर्ड है वो बेंचमार्क कहीं और जा रहा है, और ये रिफ्लेक्ट करता है जब हम मेंस का आरटीआई का पेपर देखते हैं। बहुत बच्चों ने मेंस का आरटीआई किया, आरटीआई का पेपर हमने देखा है, हमें मिला है कि ऐसे में 5 पेजेस लिखने के बाद भी बच्चों को 25 में से ओनली 2 मिला है। कितना? 2, इवन आफ्टर राइटिंग 5 पेजेस। Are you getting my point, my dear? Don't you think it's scary? Don't you think it's scary? तो इसीलिए
एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट, आपको ऐसे कैसे लिखना है, इसका भी अलग तरीका है। 20 मिला हुआ भी पेपर है जिसको इसे में 18, सॉरी नॉट 20, 18 मिला था। कितना? 18, 1818। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मार्क्स। हाउ? तो इट इज पॉसिबल ऑल्सो ना, इट इज पॉजिटिव ऑल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को आप ऐसे मत लेना कि इंग्लिश ही है, ग्रामर ही है। नो नो माय डियर। और एक बात बताता हूं मैं आपको, मेक सेंटेंस आता है ना 2 मार्क्स का। से फॉर एग्जांपल आपको दे दिया बाय हुक एंड क्रुक, आपने लिख दिया मेक सेंटेंस, अभिजीत वांट्स टू क्रैक जुडिशरी एग्जाम बाय हुक एंड क्रुक, दो इट्स करेक्ट, seems to be correct, ठीक है, you will get 2.25 marks, 0.25 marks out of 2, 0.25 marks, because क्लास 6 का बच्चे को वो मेक सेंटेंस नहीं पूछ रहा है। किसको पूछ रहे हैं? एक ऐसे इंसान को जो कल ऑर्डर लिखेगा। ये राइटिंग स्किल है तुम्हारा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मेरी बात? तो आपका मेक सेंटेंस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि यू आर मैच्योर्ड, यू आर नॉट बच्चा। बट यस, ये भी सच है कि आप सारे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता, ये भी फैक्ट है। आप सारा सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है? आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क। कैसे? आपका जो स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट इन लॉ पेपर्स, in GS area, in English area, in Assamese, wherever you have a strength, acknowledge it कि क्या तुम्हारा strength है और क्या weaknesses है। प्रोसीजरल लॉ में हर बच्चा बोलता है सर मेरा CPC खराब है, ये सबका वीकनेस है ना नहीं? तो उसको कैसे टैकल करना है? उसको एग्जाम सेंट्रिक पढ़ना है फॉर द टाइम में। कोई बात नहीं, एग्जाम निकालना है मुझे। आगे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? जीएस कब पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स यार मेरे काम का चीज नहीं होता है, बहुत बच्चों का होता ही नहीं होता। मेरी ही तुम सबका ही होगा, मैक्सिमम का होगा, है ना? एक्सेप्शन हमें सिर्फ श्याम सर ही दिखते हैं यहाँ पे कि बंदा लॉ ग्रेजुएट है, LLM किया हुआ, लेकिन उनका मैथ्स बहुत अच्छा है। डेडली कॉम्बिनेशन वही इंसान है। अदरवाइज जो ह्यूमैनिटीज में आता है उसका मैथ्स जनरली खराब होता है। ठीक है, तो मैथ्स आपका खराब है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करके जाना। समझ में आ रहा है क्या? 3-4 मार्क्स से सोच के जाना कि मेरा 3-4 मार्क्स जाएगा, लास्ट में हम देख लेगा, कोई बड़ा बात नहीं। समझ में आया नहीं आया? मुझे पाला ना है कोरिश्मा, मुझे पाला। तो करना क्या है? स्मार्ट गेम खेलना है। देखो यहाँ पे ऐसे बच्चे भी थे जिसको 55 लॉ में मिला, लेकिन उसको 70-75 मिल गया उसको इंग्लिश में। नाउ जुडिशियल सर्वेंट, नाउ सी इज ए जुडिशियल सर्वेंट। एक बच्चा का ऐसा था जिसको लॉ में 72 मिला, बट इंग्लिश में ओनली 47, बच गया जुडिशियल सर्वेंट। बात समझ में आ रही है? तो वी हैव टू मैनेज दिस थिंग्स। यू नेवर नो कि तुमने इंग्लिश तुम्हारे हिसाब से अच्छा लिखा था, लेकिन उनके हिसाब से तुमने अच्छा नहीं लिखा। You never know, it's a competitive exam. So always try to subject yourself in the most worst situation. Worst situation. कैसे लाओगे? Every day राइटिंग स्किल बढ़ाओ, हर दिन लिखो, जो लिखना है लिखो, हर दिन लिखो, ऐसे लिखो, आंसर राइटिंग करो, लिखो। लिखना है, क्या करना है? लिखना है। आज के डेट में हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्त? हम ना ही ज्यादा पढ़ रहे हैं और ना ही ज्यादा लिख रहे हैं। और अगर पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल से पढ़ लिया, किसी से पढ़ लिया, टैब से, कंप्यूटर से, वी आर नॉट राइटिंग। यस और नो? जस्ट आस्क योरसेल्फ। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? झूठ बोल रहा हूं? लिखते हो, हर कोई लिखता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? याद रखना, ये एग्जाम वही बच्चा सक्सेस करेगा जो लिखेगा। आपको यहीं पे दिखेगा। आप लोग सब देख रहे हो ना एक दूसरे को, बाद में भी दिखेगा ना किसका हुआ किसका नहीं हुआ। मेरी आज की बात को याद रखना, जो बच्चा लिखता है उसी बच्चे का एग्जाम निकलता है।
इसीलिए अगर आपने एस्पिरेंट्स का अगर आपने टैगलाइन देखा है तो एस्पिरेंट्स क्या बोलता है? टू लर्न, टू रिटेन, टू एग्जीक्यूट. व्हाई? फर्स्ट लर्न. दिस क्लास इज फर्स्ट टू डिस्कस थिंग्स. हम डिस्कस करेंगे चीजें. क्या है थेफ्ट? तुम बताओ, हम बताए, तुम बताओ. विल डिस्कस. Just mere discussing is not enough. It's a learning stage. What? Learning stage. Now what you need to do? You need to retain these things. कि क्या डिस्कस किया आज हमने क्लास में? How you will retain? By practicing. By practicing. More and more, more and more practicing. And you will have a time. You will get opportunity to appear mock, weekly test to execute. अगर ये लर्निंग, रिटेनिंग और एग्जीक्यूशन पैरेलली चलता है तभी जाके एक बच्चा सक्सेस होता है. सिर्फ लर्न कर लिया कुछ नहीं होगा. सिर्फ बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चला गया कुछ नहीं होगा. समझ में आया? इट इज नॉट अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन माय डियर. दो आई एम नॉट कंपेयरिंग बट आई एम साइटिंग द ट्रूथ. अगर एक सिविल सर्वेंट बनाना होता है तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन अलग होता है. आपको अगर एक एमएलए बनाना है तो आपका एक्सपेक्टेशन अलग होता है. होता ही नहीं होता. 3 ऑर्गन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. ये सुनो, आप लेजिस्लेचर क्या सोच के वोट करते हो? और डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उसका रिक्रूटमेंट अलग तरीके से हो रहा है. सिविल सर्वेंट का भी रिक्रूटमेंट अलग पर्सपेक्टिव में होता है, उनसे अलग डिमांड है. जुडिशियल सर्वेंट से सबसे ज्यादा डिमांड है क्या? किस चीज का? ऑनेस्टी का. ऑनेस्टी आपके आंसर में भी दिखना चाहिए. समझ में आ रहा है नहीं? कभी कभी हम लोग ऐसे तुक्का मार देते हैं ना, ऐसे जस्ट पेज भरने के लिए. गंदा बात है. आने वाला बात एक ही लिखो, झूठ मत लिखो. इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, पॉसिबल है आपको नहीं आता है, आपको बना के जस्टिफाइड नहीं करना है. समझ में आ रहा है? फिर आपका एटीट्यूड क्या होगा? ओ, ये अपने आप को बचाने के लिए कभी गलत ऑर्डर भी दे देगा. समझ में आ रहा है नहीं यार? आपका थॉट प्रोसेस रैशनल चाहिए. क्या चाहिए? रैशनल. और एक जज साहब आपके दिमाग के अंदर घुसने का टाइम तो नहीं है उनके पास. कैसे जज करेगा आपको? आपके आंसर राइटिंग. Your answer writing is not only the content वाला thing, my dear. It also reflects your attitude, your mindset, your thought process also. आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है नहीं? तो चेंज कैसे करोगे? थिंक रैशनल. डोंट थिंक ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टेटमेंट्स ऑफ सम सो कॉल्ड पर्संस. बी रैशनल. जैसे आज तुमने बोला ना एज ए रैशनल कि सर हाँ ये गलत है कि हम रेप होने के बाद एक लड़की के रेपुटेशन को सोचते हैं, लेकिन रैशनलिटी क्या है? उसके माइंड में इंजुरी हुआ है, शी इज अ विक्टिम. यस और नो? स्टार्ट थिंक लाइक दिस. समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम मृणालिनी दत्त हो, तुम गोगोई हो, तुम बोरुआ हो, तुम अग्रवाल हो, तुम गुप्ता हो, तुम खान हो, अहमद हो, ये कहीं भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यू शुड बी वेरी रैशनल बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ जुडिशियल सर्वेंट. यू डोंट हैव योर ओन. अपना कुछ नहीं है तुम्हारा. तुम कौन से कास्ट से हो, कौन से क्रीड से हो, कौन सी लैंग्वेज तुम बोलते हो, यू डोंट हैव दिस आइडेंटिटी. You have only one identity, that is the chair, the protector of the constitution. So this is not छोटा मोटा thing, my dear. तुमको एक डीसी साहब ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारा फाइल फेंक दिया, तुमको बोला यू आर नॉट एलिजिबल. कहाँ जाओ? मिनिस्टर के पास गए, मिनिस्टर बोला हाँ नहीं किया, वो कुछ अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए तुमको हेल्प नहीं किया. फिर किसके पास जाओगे? कौन है लास्ट रिजॉर्ट? जुडिशियरी. समझ आ रहा है? तो तुम्हारे अंदर जब तक एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक तुम ये एग्जाम क्रैक नहीं करोगे. ये बात याद रखना, क्योंकि तुम अपना एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करा दो. ये अंदर से आना पड़ेगा. तुमको अंदर से चेंज होना है. थिंक रैशनल. जब भी रिजर्वेशन का बात है, थिंक रैशनली. अभी जाति जनगणना का बात चल रहा है, नहीं चल रहा है? कास्ट सेंसस. इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचो. क्या है कास्ट सेंसस? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स इन द कास्ट सेंसस? आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो कहाँ से आएगा? ऑथेंटिकेट सोर्स से पढ़ना शुरू करो. नाउअडेज हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ एजुकेशन. यस और नो? दिस इज द थ्रेट ऑल्सो. Always go through the authenticate source, and for law the authenticate source is a bad.
Are you getting my point? And one, जब तुम पढ़ना शुरू करोगे बैरिक से, जब तुम समझना शुरू करोगे एज ए लॉ स्टूडेंट, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना मिथ्स है हमारे अंदर और क्या रियलिटी है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Okay, so now let's see the other maze का question. Now like, what is consent? Explain consent of child. नागालैंड का क्वेश्चन है कि what is consent? Explain consent of child. Now आपको पूछा गया what is consent, okay? Explain consent of child, okay? नहीं लिखना उखना नहीं, बात समझो. What is consent पूछा, explain consent of child. अब आपको बात समझना ध्यान से. हाँ, आपको एक थ्योरी क्वेश्चन दिया 5 मार्क्स का, what is consent. Explain consent of child. क्यों आपको पूछ लिया, क्यों बोल रहा, सॉरी, पूछा आपको. अब आपका कंसेंट का मतलब सबको पता है, पता ही नहीं पता है कंसेंट क्या होता है. आप अगर स्टार्ट कर दिया अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग का बात इसमें, यू विल नॉट गेट मार्क्स. इफ यू स्टार्ट राइटिंग विथ योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेंट, यू विल नॉट गेट मार्क्स. इफ यू आर राइटिंग कंसेंट मीन्स यू हैव अ फ्री विल, है ना, इस तरह का तुमने बात लिखा, यू विल नॉट गेट मार्क्स. तुमने कॉन्ट्रैक्ट का बात ले आया, कोर्शन, ट्रेड, यू विल नॉट गेट मार्क्स. You have to see कि in what context they have asked this question. In what context? What is consent? Explain consent of child. ये कौन से सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है? भारतीय न्याय संहिता? Yes or no? The criminal law? Okay. Then which criminal law? ठीक है, criminal law, which criminal law? BNS, बिकॉज आपके सिलेबस में BNS ही था, BNS ही है तो BNS. नाउ BNS विच प्रोविजंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको अपने आंसर में क्या रिफ्लेक्ट कराना है? अथॉरिटी. क्या? अथॉरिटी. बात समझना, क्या? अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स आप जो भी आंसर लिखोगे, मैंने क्या बोला, तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है. तुम क्या सोच रहे हो ये जरूरी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है ये जरूरी नहीं. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू थिंक, व्हाट यू एस्पायर, व्हाट यू डिजायर. नो, व्हाट इज देयर इन द रेलेवेंट प्रोविजंस. Because you are not the maker of law, you are going to be the interpreter of law. What? Interpreter of law. So you have to cite authority. क्या? Authority while writing your answers. People are lacking this, and because of this they are getting very less marks in their mains. Why? They never cite authority in their answer. They just write a general answer. So what should be the authority? The provisions? Yes or no? Online. The relevant provisions? You have to interpret that relevant provisions. Yes or no? और क्या होता है अथॉरिटी? एक तो होता है relevant provisions और very good judicial precedents, judgments. Yes or no? Yes or no? होता ही नहीं होता है. किसी जज ने इसका इंटरप्रिटेशन ये दिया है, होता ही नहीं होता है. तो अथॉरिटी क्या है? प्रोविजंस और जुडिशियल प्रेसिडेंट. और क्या होता है? मान लो आपको एक टर्म मिला, यस, एक टर्म मिला, यस माय डियर, आई गॉट द पॉइंट, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ओनली. सो आपको एक टर्म मिला, यू गॉट अ टर्म which is not defined in any provisions, not interpreted by any law. कि मेरा टर्म पाला को तो नहीं, कोई सेक्शन नहीं है उसका, ठीक है. अभी इंजुरी तो सेक्शन मिल गया हमें, इसलिए हमें समझ में आ गया. मान लो अगर इंजुरी का कोई सेक्शन ही नहीं होता, तो आप इंजुरी को कैसे इंटरप्रेट करता? ना प्रोविजन है ना जुडिशियल डिसीजन है. जुडिशियल डिसीजन होता तो जुडिशियल डिसीजन से इंटरप्रेट कर लेता. और अब क्या करोगे? Just try to understand. I am talking about authority. Okay? Provisions are authority. Yes or no? The bare provisions. Then the judicial precedents. कोई judgment है. Then कोई jurist, किसी jurist ने किसी बारे में कुछ बोला हो,
उस टॉपिक के बारे में कुछ बोला हो? ये सुनो, jurist and if not then the dictionary. Which dictionary? Black laws dictionary. ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं? तो आपको अपने दिमाग को कैसे बनाना है कि भाई मैं कोई नहीं हूं, हम शून्य हैं, मूल एकूना है। हमको क्या करना है? इंटरप्रेट करना है अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रैशनली सोचो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमेशा अपने आंसर में आपको क्या देना है? अथॉरिटी, आइडल प्रोविजंस, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, सम जूरिस्ट का कोड या ब्लैक क्लॉज। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मेरी बात? हाँ हाँ करते हो, फिर जाके एक ही गलती करके आओगे। मेंस में मार्क्स मिलने का चकमा कोई अदर वे नहीं है, क्योंकि जब थेफ्ट का क्वेश्चन आएगा चकमा आप भी लिखोगे, दीना भी लिखेगी, सब लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? किसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा? जो अथॉरिटी कोड करता है। क्या करता है? अथॉरिटी कोड करता है, ठीक है। और उस प्रोविजंस को इंटरप्रेट, जस्ट mere राइटिंग इज नॉट इनफ। If you just write down the ingredients, you will not get marks. You have to interpret it. That too also precisely. How? Precisely. Because जब तुम मेंस लिखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सॉरी इतना देरी तक तो हम तुमको टाइम ही नहीं देगा। जब तुम मॉक दोगे हमारे साथ, जब तुम टेस्ट दोगे हमारे साथ, तब आपको पता चलेगा कि 3 आवर्स कितना कम होता है आंसर लिखने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समझ में आ रही है? मुझे पैसा आना है पुआ, ठीक है। कोचिंग कर लेने से जज नहीं बनोगे। किसी कोचिंग सेंटर के औकात नहीं है कि वो तुमको सिर्फ पढ़ा के जज बना दे। किसी कोचिंग सेंटर का औकात नहीं है, भले राहुल सर का कोचिंग सेंटर हो, राहुल IAS, या भले ये एक्सपीरियंस हो या कोई भी हो। ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। क्या देता है? प्लेटफॉर्म। आप तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते थे, आप तो अलग अलग सोशल मीडिया से भी पढ़ सकते थे। आपने क्यों इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोचा या क्यों सोच रहे हो? बिकॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डिसिप्लिन। यस और नो? कि यू मस्ट हैव अ रूटीन, कि मुझे पढ़ना है, टू हैव मोटिवेशन। यस और नो? यस। ऐसा तो नहीं है कि एक्सपीरियंस का मटेरियल तुमको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। कोई पुराना बच्चा है कुछ बोल देगा तुमको मिल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ले जाओ। जिसको कोचिंग नहीं भी करना है, एडमिशन नहीं भी लेना, मटेरियल चाहिए ले जाओ, फ्री में ले जाओ। लेकिन जज नहीं बनोगे, नहीं बनोगे जज। ऐसा थोड़ी नहीं कि मटेरियल पढ़ने से जज बन जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक पर्सनैलिटी ग्रो करने का टाइम है। आपका पर्सनैलिटी ग्रो होना पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस ग्रो होना पड़ेगा, आपके अंदर रैशनैलिटी आना पड़ेगा। वो आएगा कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, देखना है चीज़ों को। कोई भी इंसिडेंट हो रहा है उसको उस पर्सपेक्टिव में देखना है। समझ में आ रहा है क्या? आज असम में, नागालैंड में, अरुणाचल में अगर ट्राइबल्स पीपल अगर अपने राइट्स के लिए चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहाँ है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बिकॉज यू आर नॉट ए लेजिस्लेटर। तुम अपना पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ नहीं सोचोगे, तुम क्या देखोगे? रैशनैलिटी देखोगे। क्या देखोगे? कि क्या रैशनल है, क्या लॉफुल है, क्या इक्वालिटी है, क्या इक्विटी है। ये सुनो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस, नेचुरल बायसनेस होता है। नेचुरल बायसनेस किससे होगा? तुम्हारे फ्रेंड्स से, तुम्हारे रिलेटिव से। इसलिए तुम्हारा जब भी पोस्टिंग होगा, तुम्हारा अपना होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल बायसनेस हो सकता है। वही का आ गया चाचा, ओ मोरे तुम्हारा होम सना पाइसिलू, भाई तुम क्या करेगा? तुम्हारा नेचुरल बायसनेस आ सकता है और चाचा को छोड़ दिया तुम, इसलिए नहीं होता। तुम्हारे पास कभी भी तुम्हारे रिलेटिव का केस आएगा तो तुमको हटा देना है। क्यों? नेचुरल बायसनेस है। लेकिन तुम्हारा कास्ट को लेके, तुम्हारा क्रीड को लेके, तुम्हारा रिलीजन को लेके, तुम्हारा सेक्स को लेके तुम बायस नहीं हो सकता। अगर तुम हुआ है तो यू आर नॉट अ जुडिशियल सर्वेंट। तो इसीलिए बनने के बाद थप्पड़ मत खाओ, पहले अपने आप को ठीक करो। तुम एक लड़की हो, तुम्हारे पास अगर रेप केस आ गया तो तुम ऐसे पागल मत हो जाना कि रेप कैसे कर दिया, कैसे किया, अभी तो एक्यूजेशन आया।
अभी तो एक्यूजेशन आया है, चार्जशीट देखोगे आप, आर्ग्यूमेंट देखोगे, तब अगर खुद ही सोचती है कि ये सारा रेप किया है तो खत्म, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ खत्म। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? से फॉर एग्जांपल यू आर ए ब्राह्मीण, यू आर एन आहूम, यू आर ए कुश कोलिता, और आ गया कोई ब्राह्मीण, कोई आहूम, कोई कुश, कोई कोलिता, और तुम बाइस्ड हो गए। समझ आ रहा है नहीं? मुझे पाया ऐसा ना है हे लेवल की निजाम मगस्तुक लुइसा बोलेंगे तो कितने कोई बोली बात। ये तुम अगर मेंस भी क्लियर कर दो तो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोस्त, 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा, आपको ऐसा नहीं वहां पे सिर्फ लॉ का क्वेश्चन पूछेगा, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको कंफर्ट कर देगा, इतना कंफर्ट कर देगा कि तुम दिल की बात बोल दोगे उसको टक से। इसीलिए वो जो 30 मिनट्स से लेके 3 मिनट्स का जो इंटरव्यू का टाइम है, जो 3 मिनट भी हो सकता है, 30 मिनट्स भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से करना है। आपको अपना माइंड सेट सही करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको फैक्ट जानना जरूरी है, आपको जजमेंट जानना जरूरी है कि किस तरीके से एक जजमेंट आता है, किस तरीके से सोच आता है। अभी कितना पॉइंट और होता है, आपने अपने लॉ कॉलेज में जजमेंट को कभी भी बहुत एलाबोरेटली नहीं पढ़ा, unless and until you are in a NLU or other some of the central university like Delhi University, okay, but you have the opportunity right now. Are you getting my point or not? If you go through the judgments, then only you will come to know कि how people place their arguments, how judge adjudicate on it, and how he pass the judgment. Are you getting my point or not? समझा या नहीं समझा? बहुत सारे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में जजमेंट राइटिंग भी एक पार्ट है, लेकिन वो आपका नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसीलिए आपको जजमेंट पढ़ना इसलिए जरूरी है टू अंडरस्टैंड लॉ इन अ बेटर वे। जस्ट एक बात बताओ दोस्त, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है? से फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ लिया कि व्हाट अमाउंट्स टू थेफ्ट, ठीक है? बात समझना है, चोरी क्या होता है? अगर कोई भी डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजीशन विदाउट कंसेंट मूव करता है तो चोरी हो गया, ठीक है? इतना सा तुमको समझ में आ गया, तुमने इंग्रेडिएंट्स याद कर लिया, एनफ हो गया। आप सोचो कि उसके साथ साथ आपने एक जजमेंट पढ़ा, जिस जजमेंट में फैक्ट्स है कि एक दिन एक आदमी क्या किया, अपने ऑफिस के वहां से बिना बोले कुछ फाइल लेके चला गया किसी कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर को वो फाइल दे दिया, और कॉन्ट्रैक्टर ने उसका फोटोकॉपी करके फाइल फिर रिटर्न कर दिया, और फिर वो ऑफिस वाला आदमी फिर जाके वो फाइल रख के आ गया। तो क्या थेफ्ट हुआ या नहीं हुआ? बात समझना, नो नीड टू गिव आंसर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हियर you are not only reading law, you are applying the law also. Yes or no? You are applying or not? You are applying. क्या फैक्ट्स था कि ऑफिस से बिना पूछे उसे डिसऑनेस्टली फॉर सम मॉनेटरी गेन उसने ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट का फाइल निकाला, टेंडर वाला फाइल निकाल के कॉन्ट्रैक्टर को दिखा दिया कि देखो इतना इतना टेंडर आया है। तो उसने क्या किया, उसने सबसे लोएस्ट बिड मार दिया। मान लो 10 लाख का हाईएस्ट टेंडर था, उसने क्या किया 9,99,999 का मार दिया। तो क्या हुआ, उसने डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजीशन मूव किया नहीं किया, लेकिन आप बोलोगे फिर से रिटर्न कर दिया था, आप बोलोगे फिर रिटर्न कर दिया ना, लेकिन एटलीस्ट फॉर 1 मिनट ओनली, फॉर अ डे ओनली, जिस इंसान की पोजीशन में वो रहना चाहिए उसकी पोजीशन से तो हट गया। तुम्हारा मोबाइल चोर चोरी करके चला गया चकमा, 1 घंटे के बाद आपको रिटर्न कर दिया, तो क्या चोरी नहीं हुआ? आपका प्रॉपर्टी का लॉस हुआ नहीं हुआ? दो टेम्परेरी बट हुआ नहीं हुआ। तो जब पढ़ के आप अप्लाई करोगे उस लॉ को, तब क्या होगा पता है? तुम हमेशा उसको रिटेन करोगे। क्या करोगे? रिटेन करोगे। और व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, कितना सुंदर आंसर लिखोगे आप सोचो। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस भी पता है, जैसे मैंने आपको प्राइवेट डिफेंस का बातों में जूरिस्प्रूडेंस बताया, रेप का जूरिस्प्रूडेंस बताया, और अगर आपने आंसर राइटिंग में अगर एक लाइन भी उसको लिख दिया, वेदर यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स और नॉट माय डियर। This entire game is about value addition. What? Value addition. How you will add value to your answers.
It is not number of pages. It is not about number of pages. I hope कि आप समझोगे मेरी बात को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? आज तक का ये रिकॉर्ड है, भले 150 बच्चा यहाँ पढ़ लिया हो, 130, 140 बच्चा पढ़ लिया हो, कोई बच्चा भी बीच में छोड़ के नहीं गया, अनलेस एंड अनटिल 2 बच्चा जिसका अपना बहुत पर्सनल इश्यूज हो गया, हेल्थ इश्यूज, आज भी वो साथ में। क्यों है? क्यों है? क्योंकि उनके अंदर आज भी मोटिवेशन। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ उनका, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, आज फिर से वो खड़ा है कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट में भी एग्जाम देना है। तो मैं इस बात से ये कन्वे करना चाहता हूँ कि जब तक आप गिव अप नहीं करोगे, इंस्टीट्यूट आपको लेके गिव अप नहीं करेगा। लेकिन अगर आप गिव अप कर दोगे, वी कांट डू एनीथिंग। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये जर्नी हो सकता है टफ है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। क्यों दिक्कत आएगा? बिकॉज आज की डेट में तुम कंफर्टेबल जोन में हो, तुमको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगा। आएगा नहीं आएगा दीना? आज तो आराम से मेकअप करने में 1 घंटा जाता है, ड्रेस पहनने में 1 घंटा जाता है ना, खाना बनाने में 1 घंटा जाता है, खाना खाने में 1 घंटा जाएगा, वॉशरूम में मोबाइल लेके जाओगे 1 घंटा जाएगा। लेकिन जब 10 आवर्स 12 आवर्स पढ़ना होगा, तब ये सब कंफर्ट क्या होगा? खत्म होगा। फोन में ठीक है 4 घंटा बात नहीं कर पाओगे, 4 मिनट मैं पढ़िए तुम्हें पढ़िए सर, तुम भी पढ़ रहे हो? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तुम काम कर रहे हो? हाँ मैं पढ़ रही हूँ। ठीक ठीक है, चलो हाँ मैं अच्छी हूँ, खाना वाला बस ठीक है, 10 मिनट बात करो, बिचिंग भी करो, सब जरूरी है। एनर्जी मिलता है बिचिंग करने से? नहीं मिलता, नहीं मिलता। हंस दिया मतलब मिलता है? तो कॉम्पाउंड है अजिताए इजुनी भाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की बिचिंग करते, लड़का भी करता है, सब करते हैं बिचिंग। करो, वो भी करो, आधा घंटा बिचिंग के लिए निकालो, बिचिंग टाइम लिख के रखो, अच्छा लगता है, पॉजिटिव मिलेगी तो करो। लेकिन याद रखो कि पढ़ना है हमें ज्यादा। अब वो नहीं है कि एग्जाम के पहले हम पढ़ लिया, वो एलएलबी था, वो एलएलबी था। यहाँ का मॉक टेस्ट पास नहीं करोगे तुम, यहाँ का रेगुलर टेस्ट पास नहीं करोगे तुम। समझ में आया? डोंट गेट डिमोटिवेटेड व्हेन यू गेट लेस मार्क्स। Here you are allowed to get less marks, but not in the exam. यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 10 मार्क्स मिलेगा 100 में से, कोई दिक्कत नहीं है। शर्म मत करना कि सबके मार्क्स के साथ मेरा मार्क्स भी आ रहा है, क्या बड़ा बात है, क्या चीज़ का शर्म है? बात समझ में आ रहा है नहीं? बाद में जब आएगा, बाद में तो मार्क्स आएगा, नहीं आएगा? 3000 लोगों में तुम्हारा भी तो मार्क्स आएगा ना, नहीं आएगा? यहाँ पे तो नाम के साथ दे देता है, पूरा नाम, पूजा दास, मार्क्स सब दे देता है। तो इससे अच्छा यहीं पे शर्म खाओ जितना खाना है, ताकि वहां तुमको 70, 80, 90 मिले। समझ में आ रहा है नहीं? एंड क्लासरूम में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यू आर नॉट एनिमी टू ईच अदर, यू आर नॉट एनिमी टू ईच अदर, यू शुड हेल्प ईच अदर, अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो। प्रिपरेशन कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकता, ये टैगलाइन है मेरा, जो याद रखना। प्रिपरेशन कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकता। प्रिपरेशन अगर करना है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स, नॉट ओनली विथ योर टीचर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? स्टूडेंट मतलब भिखारी, स्टूडेंट मतलब भिखारी। किसी से शिक्षा का भीख मांगने के लिए शर्म नहीं खाना है हमें, सच्ची में नहीं खाना है हमें। मत मांगो किसी से, दोस्तों का दिया मुँह पुचका खा, मत मांगो पुचका खाने का पैसा, ज्ञान मांगो, उसमें शर्म नहीं आना चाहिए। राम जेठमलानी का नाम सुना है ना आपने? आज सर नहीं है, लेकिन जब वो अपने गाउन को सबमिट करने के लिए भी जा रहे थे इतने उम्र के बाद, ठीक है, इतने इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, तब भी वो इंसान ने हम्बली यही बात बोला था कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, still I have so many things to learn. Can you imagine that stalwart of law, Ram Jethmalani, he was saying कि I'm a student of law and so many things left to learn, to be learned. तो who the hell you and me है यार? कौन है तुम्हारा? कौन है? समझ में आ रहा है दोस्तों? इसीलिए दोस्तों से डिस्कस करने के समय कभी भी ये मत सोचना कि वो ज़्यादा सीख जाएगा, ये फालतू बात है। डिस्कस करने से ज़्यादा आता है ज्ञान,
सरस्वती तो ओनली चीज है जिसको दोगे तो बढ़ता है। मानते हो नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? मानते हो ना? अप्लाई करो। मुझे पाला आज क्लास नहीं आ पाया तो पूछो कि क्या था क्लास में, और तुम पूछने का औकात कब होगा? जब तुमने किसी को बताया होगा। ग्रुप पे किसी ने मैसेज दिया आई वांट द नोट्स ऑफ दिस क्लास, सब रुका हुआ है, मोय ही दीबो नहीं, सब सबको देख रहा है, कौन हेल्प करता है उसी को हेल्प मिलेगा। आज का दुनिया अलग हो गया है, जो हेल्प करता है उसको हेल्प मिलता है। समझ में आया? कोई इसके पास इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ हेल्प करते रहे। ऑब्वियसली क्विट प्रो को का दुनिया है। मैं तब तक ये अच्छा पढ़ाऊंगा जब तक तुम लोग पढ़ोगे। जब तुम लोग लेजी मारोगे तो मुझे भी पढ़ाने का मन नहीं करेगा। छोड़ो यार, इन लोग खुद ही इंटरेस्टेड नहीं, हम क्यों अपना खून जला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। ऑब्वियसली आएगा ये मेरा थॉट, नहीं आएगा। कोचिंग में क्लास ही अगर नहीं होगा, तुम लोग कोचिंग आने का सोचोगे? तुम्हारा मन करेगा कोचिंग के साथ एसोसिएटेड रहने का? सेम वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। इवनिंग बैच का मैंने मेंस का पेपर चेक करके देने में देरी हो गया, नहीं दिया मैंने, 2 महीना चेक करके नहीं दिया उसका मेंस का पेपर। उसके बाद जब मेंस हुआ ना, एनरोलमेंट कम गया। एनरोलमेंट मतलब एग्जाम देना, कम बच्चों ने एग्जाम दिया। क्यों? क्योंकि वो डिमोटिवेट हो गया कि भाई 2 महीना तक तुमने मेरा रिजल्ट नहीं दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये इस तरह की चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कोचिंग से गलती नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? होगा, और तुम्हें पॉइंट आउट भी करना है। समझ में आ रहा है नहीं? जैसे आपकी गलतियां पॉइंट आउट हो रही है आपको बेटर करने के लिए, आप भी कोचिंग की गलतियों को पॉइंट आउट करोगे ताकि कोचिंग बेटर हो। कंस्ट्रक्टिव थॉट लाना है। तुम नहीं पढ़ोगे वो क्या, जा तुम पढ़ने लगे निकल जाओ, जाओ तुमको नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। मेरा काम है उसको खींच के लाना, भाई क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या प्रॉब्लम हो बताओ। घर पे प्रॉब्लम, माँ का प्रॉब्लम, बाप का प्रॉब्लम, पैसा का प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बताओ। समझ में आ रहा है नहीं? तो 2 वे and we will succeed. Are you getting my point? But you have to practice on a daily basis. You have to study on a daily basis. Because aspirant अगर हो तो it's not a part-time thing. It's a full-time thing. जब सो रहे हो तब भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि you are aspirant. You are a law student. Behave like a law student. While discussing with your family, while discussing with your friends, behave like this. ऐसे बातों बातों में कुछ बोल मत दो किसी को अच्छा लगने के लिए। हाँ आजकल भाई ये माइनॉरिटीज का बहुत हो गया है। हाँ मुसलमानों ने दुनिया खराब कर दिया है। हाँ हिंदू लोग भी आजकल ऐसा हो गया है। हाँ ब्राह्मण ऐसा है। हाँ ये ऐसा। नो नहीं भाई, पाप, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सब। तो बात ही मत करो ऐसा, मुझे पैसा नहीं, क्योंकि ये माइंड ही है। जैसा सोचोगे, जैसे बात करोगे, वैसा बनोगे तुम। समझ में आ रहा है? বুজি পাইছে না মই কি কব বিচাৰিছো? সময়টো বেয়া বুলি মই তোমাক এইখিনি কথা ক'বলগীয়া হৈছে। ये तो हमारे घरों में इस तरह की बातें कभी नहीं चलती थी, कभी सीखा नहीं था हमने, लेकिन माहौल खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड को रैशनल बनाते रहो, नहीं तो क्या होगा, इस फ्लो में तुम भी करप्ट हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मतलब माइंड तुम्हारा कब करप्ट होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। नाउ सी, आपको 1 वीक के बाद आपको मटेरियल दे दिया जाएगा, ठीक है, ऑफ योर रिस्पेक्टिव पेपर। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है? जैसे जिसके पास मटेरियल है उसको पता होगा कि हर एक चैप्टर के बाद यू हैव योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव योर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। यस। सो क्लास में अगर आपको टॉपिक पढ़ाया है तो ये आपका ड्यूटी है कि आप उसको प्रैक्टिस करेगा करके। समझ में आ रहा है? You will be provided with extra practice questions also on 10 day interval of all the subjects. Are you getting my point or not? जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जीएस सर पढ़ाएंगे, जो इंग्लिश मैडम पढ़ाएगी, जो असमीज मैडम पढ़ाएगी, ये सब आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हो। यू आर लर्निंग एंड रिटेनिंग थिंग्स एट द सेम टाइम एंड देयर विल बी वीकली एग्जाम। डोंट स्किप द एग्जाम। अगर आपका कोई क्लास स्किप हो गया कोई बात नहीं है, वीडियो देख लेना, बट एग्जाम स्किप मत कर। समझ आया? मुझे पाला? ठीक है। नेक्स्ट वीक मेरा क्लास जब नेक्स्ट स्टार्ट होगा, आई विल स्टार्ट विथ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। व्हाट? कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है।
अभी मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें जितनी बात बताई, जस्ट मैंने टच किया है, 1% बात बताया है मैंने, उसका 99% बात जानना बहुत कुछ है, एंड यू विल लव दिस क्लास, इट्स माई बिलीफ, ठीक है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू लव दिस क्लास, एंड मुझे कैसे अच्छा लगेगा जब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, ज्यादा से ज्यादा डाउट लेके आओगे, तब मुझे क्लास कराने में ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो मेरे पास जितना है मैं उतना बोल के चला गया, मुझे तो मजा नहीं आया, तुम्हें मजा आया, समझ में आ रहा है, समझी पाला, ठीक है। Okay, we'll see you with culpable homicide and murder in the next week. Try to read from your barrack, from any other way. जहाँ से पढ़ना थोड़ा पढ़ते रहो, culpable homicide murder क्या है, ठीक है। Then we will discuss कि तुम्हें क्या आता है, मुझे क्या आता है, हमें क्या आता है, ठीक है। Okay, thank you, bye bye, see you. Welcome bro, bye bye.